Dear learners, greetings of the day. Welcome to my YouTube channel of schooling. I'm your educator, Mr. G.B. Suwar. You have very sincerely watched my first series conceptual lecture, Inspection and Supervision. Thank you so much. Keep watching, like, share, comment, and subscribe my channel of schooling. Please see the details in the channel description box. और आज के ये जो सीरीज़ होगा, ये सीरीज़ में हम लेक्चर रखेंगे कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर. You will get more than 100 multiple choice questions to appear all sorts of examinations. I too have provided notes for those who are doing their graduation and post-graduation course. Please press the bell icon to get all notifications. और आप join me and follow me at my Telegram, Twitter, WhatsApp, Instagram and Facebook for more updates. Please like, comment, share and subscribe and press this bell icon to get the notifications. चलो शुरू करते हैं आज का लेसन. क्लासरूम कम्युनिकेशन अंडर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. इस लेक्चर में हम देखेंगे कंसेप्ट, नीड, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, द 7 C's and 4 A's of communication, types, models and the networks of communication, barriers of communication, along with that multiple choice questions. There are 100 different questions. Please be very careful and take notes while the discussion is going on. Good. So dear learners, before this age, that means the 21st century, we have seen agriculture revolution, we have seen industrial revolution, and there have been radical changes in the worldwide pattern of production and distribution. And this 21st century is the age of advanced communication. हमने आईटी से शुरू किया, आईसीटी पे आया और आज का डेट जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? देयर इज ए ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, more clarity and consumer control is there. That means the way you want, you can go through the information. And economy. So these are the features of the 21st century advanced communication age. So first question देखिए, the word communication originates from, choices are common: communist, commune, commute. Please remember that I had told you that how to eliminate the choices to choose the best one. कैसे आपको चूज करना है, आंसर क्या है. The same formula applies also. देखिए, फर्स्ट एक वर्ड देखते हैं, commute. commute क्या है? Commute means change. To change to another. To change to another. Example, commuting foreign currency to domestic currency. One more example, commute to death sentence to life in prison. मतलब चेंज करना है one thing to the other, वो है commute. और commune क्या है? commune है have more to commune. That means to talk over. To talk over an issue. विलियम शेक्सपियर का आप ड्रामा अगर पढ़े हैं, जूलियस सीजर, वहीं पे लिखा है, दिस इज द वर्ड, have more to commune. That is the phrase.
हैव मोर टू कम्यून। तो ये रहा टॉक ओवर और डिस्कस, ये रहा चेंज, ये रहा डिस्कस। और दूसरा है कमन, कमन यू अंडरस्टैंड। सो द फाइनल चॉइस इज व्हाट? दिस इज द चॉइस, communist. So the word communist, communication has been originated from communist. ठीक है, मिल गया आंसर आपका। ठीक है, तो देखते हैं कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट एक्चुअली उनका उसका मीनिंग क्या है, कैसे वो आया अपना फील्ड पे, देखते हैं। कम्युनिस्ट जो है, मार्क्स एंड एंजल्स नाम सुना होगा, मार्क्स एंड एंजल्स। एंजल्स कौन है? कौन है वो? 1948 जर्मनी से है। और क्लू दूं, इतना सफिशिएंट है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो फेमस पैम्पलेट है, दिस इज द नेम ऑफ ए पैम्पलेट। दिस पैम्पलेट एक्चुअली ब्रॉट पॉपुलैरिटी द वर्ड कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट ये पॉपुलैरिटी में लाया कम्युनिस्ट को, कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स। ये जो वर्ड है कम्युनिस्ट, दिस इज वन मोर क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम दिस इज अ लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड। लैटिन आज की डेट में एक्सटिंक्ट है, नॉट इन पॉपुलैरिटी, वो डेड हो गया है, लाइक संस्कृत। दैट मीन्स पीपल नो मोर यूज दिस लैंग्वेज। ग्रीक जो है, दिस इज फ्रॉम ग्रीस, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ग्रीस। ग्रीस इज द कंट्री दैट इज बिलीव्ड टू बी द क्रैडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, आपको पता होगा। और ग्रीस और कुछ कुछ नाम है, अरिस्टोटल ग्रीस से रिलेटेड है, सोक्रेटिस, सोक्रेटिस, और भी नाम है डेमोक्रिटस, और भी नाम है टेम्पल ऑफ अपोलो, द सन गॉड अपोलो। ये सारे इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ग्रीक। अरिस्टोटल रहे अपना, ही इन्वेंटेड फॉर्मल लॉजिक, आपको पता है फॉर्मल लॉजिक। सोक्रेटिस इज बेस्ट नोन फॉर एज ए क्वेश्चनर, कुछ भी देखते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं। और डेमोक्रिटस इज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, उन्होंने दिया एटॉमिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ग्रीस। और ग्रीस एंड लैटिन दोनों यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है दोनों, दिस टू आर यूरोपियन कंट्रीज। और ग्रीस से लैटिन का दूरी कितने हैं? ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स, 2.5 आवर्स फ्लाइट जर्नी। फ्लाइट में जाएंगे तो 2-2.5 घंटा लगेगा। ग्रीस और ग्रीक जो है वो लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप। ग्रीस एक ऐसा ही कंट्री है, वो यूरोप को भी टच करता है, यूरोप में है ही, यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में, ये तीनों कॉन्टिनेंट, दैट इज द क्रॉस रोड ऑफ ग्रीस। सो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आई वांट टू टेल यू दैट कम्युनिस्ट इज द वर्ड, दैट इज ए Latin word. Many books they have written a Greek word, but that is incorrect. It's not Greek word. This is a Latin word. Latin word है। Almost 1529 जो पॉपुलैरिटी कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, और एक वर्ड है उसका कम्युनिकेयर, देखते हैं। कम्युनिकेयर एक वर्ड है, कम्युनिकेयर, और कम्युनिस्ट, ये दोनों वर्ड कम्युनिकेशन का रूट माने जाते हैं। कम्युनिकेयर ये अराउंड 1529 से पॉपुलर है, फर्स्ट यूज्ड।
ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, this is related to your first question, so communis is the answer. You can prepare more than one question from this particular question. ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. मीनिंग है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज नथिंग बट शेयरिंग इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन इज नथिंग बट गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन. पहले तो है this is one way traffic, this is one way, this is two way, this is one way, this is two way, giving and receiving. और फर्स्ट में खाली शेयरिंग है, आपने शेयर कर दिया बस. एंड थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन और मोर अदर पीपल. From one or more people to one or more other people. जैसे कोई एक यहाँ से बहुत सारे लोगों को जाता है. मास मीडिया टाइप, मास मीडिया टाइप. These are the simplest of the definitions that I have chosen for you. Meaning of communication. ठीक है, आगे देखते हैं. Communication is, बहुत सारा philosophers है, रिसर्चर्स है, साइकोलॉजिस्ट्स है, दे हैव गिवन देयर आइडियाज अबाउट व्हाट कम्युनिकेशन इज. अरिस्टोटल का डेफिनेशन फर्स्ट देखेंगे बिकॉज ही इज बिलीव टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. ही हैज स्पोकन ऑलमोस्ट ऑन ऑल फील्ड्स. ए मीन्स ऑफ परसुएशन टू इन्फ्लुएंस अदर्स सो दैट द डिजायर्ड इफेक्ट इज अचीव्ड. अरिस्टोटल सेड. अरिस्टोटल. परसुएशन का मतलब क्या है? प्रोत्साहन. प्रोत्साहन, समझना या समझाना बुझाना. अगर मैं बोलूँ हिंदी में तो समझाना बुझाना, परसुएशन. तो इन्फ्लुएंस करने के लिए परसुएशन होता है. इन्फ्लुएंस मतलब टू हैव एन इफेक्ट ऑन द चेंज ऑफ बिहेवियर. अगर आप किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसका मतलब यही है कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है. वो जैसा था, आप से इन्फ्लुएंस होने के बाद वो ऐसा नहीं रहा. दैट इज व्हाट इन्फ्लुएंस. सो दिस इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मीन्स ऑफ परसुएशन टू इन्फ्लुएंस अदर्स सो दैट द डिजायर्ड इफेक्ट, जो जैसा चाहता है. अगर मैं कम्युनिकेट करता हूँ, आपसे चाहता हूँ कि आप ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ लें और अपना एग्ज़ाम ठीक ठाक दे पाएँ. मैं आपको परसुएड करता हूँ, मतलब आई परसुएड यू टू रीड मोर एंड मोर, लिसन टू मी एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मी सो दैट यू विल गेट द अपडेट्स. प्रोत्साहन करता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको, बुझाता हूँ आपको. सो आई वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस यू, टू हैव एन इफेक्ट ऑन यू सो दैट देयर इज अ बिहेवियरल चेंज. ये रहा अरिस्टोटल. कम्युनिकेशन का मतलब वो वही समझते हैं. देखते हैं जॉन ड्यूई. जॉन ड्यू कौन है भाई? इज एन अमेरिकन फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट. अमेरिकन फिलोसोफर एंड एजुकेशनिस्ट. उन्होंने फिलोसॉफिकल मूवमेंट जो है प्राग्माटिज्म है, प्राग्माटिज्म, प्राग्माटिज्म, प्राग्माटिज्म का वो फाउंडर माने जाते हैं. वो फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट है. ही इज ए फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट. फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट कौन? जॉन ड्यूई. एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन एजुकेशन ऑल्सो इज रिलेटेड टू जॉन ड्यूई. अगर प्राग्मेटिज्म का क्वेश्चन आया, चॉइसेस में जॉन ड्यूई है, गो फॉर जॉन ड्यूई. फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट में क्वेश्चन आया, गो फॉर जॉन ड्यूई. या प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन एजुकेशन में क्वेश्चन आया, गो फॉर जॉन ड्यूई. ठीक है, तो मतलब वो जो है प्राग्मा, प्राग्मा एक वर्ड में बताता हूं आपको. प्राग्मा, प्राग्मा, प्राग्मा से आया है प्राग्माटिज्म. ये है ग्रीक ओरिजिन. बट कम्युनिस इज नॉट ए ग्रीक ओरिजिन, दैट इज ए लैटिन वर्ड. ठीक है, प्राग्मा का मतलब है एक्शन, एक्शन या अफेयर, कोई भी घटना. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं. अरिस्टोटल का गया, जॉन ड्यू का गया.
उन्होंने क्या कहा, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस स्टिल बिकम्स ए कॉमन पोजीशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Any question related to communication or statement over there, you have to, I am highlighting these ones. Common position अगर कोई सेंटेंस में है तो वो है जॉन डी का. परसुएशन इन्फ्लुएंस कोई सेंटेंस में है, दैट इज ऑफ अरिस्टोटल. ठीक है. कॉमन पोजिशन मतलब दोनों का कब्जा होना उसमें. कॉमन मीन सामान्य, दोनों तरफ, मतलब द सेंडर एंड द रिसीवर. पोजिशन का मतलब कब्जा. मैं जो बोलता हूँ आप वो समझते हैं, एंड द कंसेप्ट जो है मैं जो समझाता हूँ, आप मेरे जितना उनके ऊपर पोजीशन है आपका भी उतना पोजीशन होना चाहिए, सो दैट देयर इज अ कम्युनिकेशन. देयर इज द कम्युनिकेशन. अरिस्टोटल का गया. और अभी देखते हैं डी बर्लो. डी बर्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेविड बर्लो ये भी अमेरिकन है. ही इज ऑल्सो एन अमेरिकन. 1960 में उनका एक बुक पब्लिश हुआ. देखते हैं 1960 में उनका एक बुक पब्लिकेशन हुआ, और बुक का नाम था, क्या है पता है आपको? नहीं. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो बुक है. हाँ, और एक चीज में याद में आता है, SMCR मॉडल का नाम सुना है? SMCR का मतलब, S मतलब सोर्स, M मतलब मैसेज, C मतलब चैनल, और R मतलब रिसीवर. SMCR मॉडल. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम जब टीवी देखते हैं, कोई चैनल देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं, वो किस मॉडल से बनाया हुआ है, किस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. वो है डी बर्लो का मॉडल है SMCR मॉडल. ठीक है. आगे चलते हैं. तो ये सारा आपको मिल गया. ए प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन देख लीजिए. ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन मीन्स टू स्पीक टू समबडी ऑफ आइडियाज बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर. To arrive at a common understanding. There it is common position, here it is common understanding for mutual benefit. These are the key words of this definition. Please note it. आपको नोट कर लेना चाहिए सारे कुछ. जब आप देखते हैं वीडियो तो नोट कर लेना चाहिए. ठीक है. अब नीड देखते हैं. व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन? नीड मतलब व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन? आप बेसिक नीड क्या है? ईटिंग. और क्या है? स्लीपिंग. और क्या है? रिलेशनशिप या लव. ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर सर्वाइवल. अगर मैंने कहा कि आई रिफ्यूज टू टॉक टू यू, मैंने आपको कह दिया मैं आपसे बात नहीं करूंगा. हाउ डू फील? आइसोलेटेड. हाउ डू फील? लेफ्ट अलोन. गांव में अगर झगड़ा होता था पिछले दिनों में, क्या होता था? लोग बोलते थे कि यू विल बी आइसोलेटेड, आप ऐसा मत करो. अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, यू आर लॉक अप इन ए सेल, आपको बंद कर दिया जाता है. इसका मतलब क्या है? स्टार्विंग. इसका मतलब है स्टार्विंग. स्टार्विंग कहाँ से? सोसाइटी से आपको मतलब एक्सकम्युनिकेटेड. आप जानवर जैसे बन जाते हैं. यू डोंट हैव एनीवन अराउंड टू स्पीक टू शेयर योर फीलिंग्स. क्या करेंगे आप? सो देयर इज द नीड. आपको चाहिए कोई बात करने के लिए. जैसे आपका ईटिंग है, स्लीपिंग है, एंड टू हैव ए रिलेशन. पापा हो या मम्मी हो, वाइफ हो, बच्चे हो, या एनीवन इन द सोसाइटी.
उनके साथ रिलेशन बनाना आपको चाहिए। अगर आपको नहीं मिलेगा तो यू आर स्टार्विंग। देखते हैं कि अगर कोई भी मतलब ये क्वेश्चन से देखते हैं। फ्यूचर शक इज रिटन बाय, एक बुक का नाम आया फ्यूचर शक। अल्विन टफलर, विलियम काउपर, स्कॉट एम कटलिफ एंड एलन एच शेंटर, पीटर लिटिल। दीज आर द चॉइसेस। कौन लिखा? एक एक देखते हैं, ठीक है। पीटर लिटिल, यहां से देखते हैं। पीटर लिटिल होगा क्या? होगा क्या? पीटर लिटिल कौन है? एक ब्रिटिश ऑथर है, ब्रिटिश ऑथर है। ही इज ऑल्सो कम्युनिकेशन थियोरिस्ट। उनको भी बोला जाता है ही इज ए पेंटाथलन, ही इज ए पेंट एथलेट, पेंटाथलेट। पेंटाथलेट पता है क्या है? ओलंपिक इवेंट होता है, वहां पर एक इवेंट है पेंटाथलन। पेंटाथलन, पेंटाथलन क्या होता है? वो इवेंट ऑफ फाइव इवेंट्स होते हैं एट ए टाइम। 5 इवेंट्स क्या क्या है? एक है फेंसिंग, एक है शूटिंग, एक है स्विमिंग, एक है राइडिंग, एक है क्रॉस कंट्री रनिंग। ये सारे 5 को मिला के पेंटाथलन बोलते हैं। वही जो पीटर लिटिल है, ही इज एन ओलंपिक राइडर, ओलंपिक राइडर। उन्होंने एक बुक लिखा, क्या है? 1965 में बुक लिखा, कम्युनिकेशन इन बिजनेस। कम्युनिकेशन इन बिजनेस, ठीक है। कम्युनिकेशन इन बिजनेस, वेरी फेमस बुक, वेरी फेमस बुक। आप गूगल बुक में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 1965 में बुक आया कम्युनिकेशन इन बिजनेस। तो हमारा क्वेश्चन था फ्यूचर शक, तो पीटर लिटिल नहीं है। स्कॉट एम ट्यूलिप नहीं, वहाँ हम बाद में जाएंगे। विलियम कापर देखते हैं पहले। विलियम कापर, विलियम कापर कौन है? विलियम कापर है 18th सेंचुरी पोएट है, 18th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट, ब्रिटिश पोएट है, 18th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट है। ही इज द फोररनर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक्स। वो इंग्लैंड में जितना सारा रोमांटिक पोएट है, मतलब उनका मतलब वो प्रेडिसेसर्स है। उन्होंने एक पोएम लिखा, याद में आता है, द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेलकर्क। द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेलकर्क आपने पढ़ा होगा अपना क्लास 10-12 कोर्स में। अगर आप ये पोएम पढ़े नहीं तो आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट विल टेल यू मोर अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है और कम्युनिकेशन नहीं होने से क्या होगा। द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेलकर्क, वहाँ पर एक स्टोरी, द स्टोरी गोज लाइक दिस, द पोएम सेज लाइक दिस। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे वो सेलकर्क। एक दिन एक नेवी ऑफिसर ने झगड़ा हुआ उसके साथ और वो ही वॉज एग्जाइल्ड और वो चले गए चिली। वो चले गए चिली। चिली कहाँ पे है? सांटियागो कैपिटल है चिली, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो आइलैंड का, ये जो आइलैंड को चले गए अलेक्जेंडर सेलकर्क, तो वहाँ पर उनको 4 साल रहना पड़ा। जो आइलैंड में रहते थे उनका नाम है जुआन फर्नांडिस। तो वो बिल्ली बकरी के साथ रहने लगे कंटिन्यूसली फॉर 4 years। आई रिमेंबर वन ऑफ द लाइन्स, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। और भी एक लाइन क्या है, आई स्टार्ट एट द साउंड ऑफ माई ओन, आई स्टार्ट एट द साउंड ऑफ माई ओन। अलेक्जेंडर सेलकर्क बोलता है वही पोइम पे कि मैं दिन शुरुआत करता हूँ अपने अपने साउंड से। और भी लाइन बोलता है कि सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव, हाउ वुड आई टेस्ट यू अगेन
सोसाइटी को मिस करता है, फ्रेंडशिप को मिस करता है, लव को मिस करता है, सारे चीज़ मिस करता है वो। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। और फाइनली 4 साल के बाद उन्होंने एक इंग्लिश शिप गया और उसको रेस्क्यू हो गए। ठीक है। और दूसरा नाम भी याद में आता है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ बिकॉज दैट में कवर योर जीके। माल्कम एक्स का नाम सुना होगा। माल्कम एक्स, अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम लीडर माल्कम एक्स। वो कट ऑफ हो गए थे सोसाइटी से, ग्रुप से। इमोशनल शॉक हो गया उनको, इमोशनल शॉक। वो उनका स्टेटमेंट से मैं बोल रहा हूँ। इमोशनल शॉक हो गया, समथिंग टू स्टुपेंडस टू कंसीव। उन्होंने बोला, जब आपको कैसा लगता था ड्यूरिंग योर एग्जाइल पीरियड, he said that it was something too stupendous to conceive. Nightmarish hallucination, भयानक सपना था वो, अ टेरिबल एक्सपीरियंस। अगर कोई ऐसा टेरिबल एक्सपीरियंस किसी के साथ हो तो क्या होगा? क्या होगा इस टेरिबल एक्सपीरियंस? वो टेरिबल एक्सपीरियंस में रिजल्ट इन मेंटल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस। फिजिकल डिस्ट्रेस, मेंटल फिजिकल डिस्ट्रेस का एक मेडिकल टर्म है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया है वो डिजीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन था कि फ्यूचर शॉक। इसी फ्यूचर शॉक को समझाते हुए मैं इतने सारा चीज बोलना पड़ा आपको। ऑथर है अल्विन टफलर। अल्विन टफलर है, अमेरिकन है। ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, और एक ऑथर है स्कॉट एम कॉटलिप एंड आलेनेथ सेंटर। इट हैज मेनी थिंग्स टू स्पीक अबाउट कम्युनिकेशन। स्कॉट एंड सेंटर, वो भी अमेरिकन है। 1952 में उसका बुक आया। क्या नाम है? इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस। इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस। उन्होंने एक चीज बात किया, 7C इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 7Cs ऑफ कम्युनिकेशन। 7Cs ऑफ कम्युनिकेशन। पहला सी क्या है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस। दूसरा सी क्या है? कंसाइजनेस। कंसाइजनेस। तीसरा क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। चौथा क्या है? चौथा है क्लैरिटी। आप नोट बनाते जाइए बिकॉज 7Cs ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। 7Cs टर्म है, किसने दिया? स्कॉट एम कॉटलिप एंड आलेनेथ सेंटर, दोनों मिल के। वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। और दूसरा सी क्या है? कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस। और नेक्स्ट सी क्या है? कॉटसी। और फाइनल 7C है करेक्टनेस। करेक्टनेस। ये सारे सीज हैं, दीज आर 7Cs। एक एक को समझते हैं। कंप्लीटनेस, कम्युनिकेशन करने के लिए ये 7C जरूरी है। इट इज ए मस्ट। मतलब उसका हिंदी क्या होगा? कंप्लीटनेस, संपूर्णता। संपूर्णता मतलब क्रूशियल है। क्रूशियल। इंफॉर्मेशन नॉट मिसिंग। कंप्लीटनेस मीन्स इंफॉर्मेशन नॉट मिसिंग। ठीक है, नोट करते जाइए बिकॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस माई राइटिंग में बी वेरी hazardous over here. नेक्स्ट है कंसाइजनेस, संक्षिप्ति। संक्षिप्ति दैट मीन्स मिताक्षरता। अवॉइडिंग unnecessary details. Avoiding unnecessary details. unnecessary details को अवॉइड करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो तो। कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब
ध्यान दे के बोलना है, लिखना है, कहना है, सोच विचार करके। दैट मीन्स द अप्रोच इज फर्स्ट यू, एक फर्स्ट यू अप्रोच है ना, पहले आप। ठीक है। दैट मीन्स स्टेपिंग इन द शूज ऑफ अदर्स, स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ अदर्स, मतलब आप जिससे बात कर रहे हैं उसके जगह आपको खड़ा होकर सोचना है कि उसको चाहिए क्या, मैं कैसे बोलूं। और स्पष्टता, क्लैरिटी, स्पष्टता, स्पेसिफिक मैसेज, एग्जैक्ट वर्ड्स, जो चाहिए एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखना है। और कंक्रीटनेस है स्थूलता। दैट मीन्स ऐसा है ना टूटे, विथ फेथ एंड विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं अगर 4 लिख रहा हूं, 4 मतलब 4 ही है और कुछ नहीं हो सकता। 5 लिखूं, 5 ही है। संडे लिखूं तो संडे ही है। दैट इज द कंक्रीटनेस ऑफ योर इंफॉर्मेशन। और कोर्टसी जो है वो है सौजन्य, शिष्टाचार। दैट मीन्स नॉट बायस्ड नहीं होना है अपना राइटिंग में। कोई एनिमी के पास आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, डोंट गेट बायस्ड, रादर से वट एवर यू वॉन्ट टू से और वट एवर ही इंटेंस टू लिसन। जो उनको चाहिए वो सुनाओ, वो लिखो, वो बोलो। एंड फाइनल इज करेक्टनेस इज यथार्थता या शुद्धता। करेक्टनेस इज दैट बूस्ट द कॉन्फिडेंस। करेक्टनेस एक कहावत है, करेक्टनेस बूस्ट्स कॉन्फिडेंस। ठीक है। और ये सारे रहो, करेक्टनेस भी वेल टाइम्ड मैसेज, ठीक टाइम पे होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। तो ये सारे चीज़ है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, आगे देखते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल्विन टॉफलर, विलियम कॉपर, स्कॉट कटलिप एंड एलन एच सेंटर, पीटर लिटिल, ये बहुत सारे बुक्स है। 4 बुक्स आपको मिला और बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला, 7 C's भी मिला। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देयर आर जनरल ऑब्जेक्टिव्स में इन्फॉर्म, अप्राइज, परसुएड, रिक्वेस्ट, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, मोटिवेट, एडवाइस, सजेस्ट, एजुकेट, क्लैरिफाई, रिलेट फैक्ट्स एंड फिगर्स, रेक्टिफाई, इवैल्यूएट, कंप्लेन, वार्न, रेप्रिमेंड और अब्यूज। ये दोनों निचला श्रेणी में आते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर नेगेटिवली कनोटेटेड। एक कमेंट्स पे भी मैंने लिख दिया है, इफ एक्सेप्टेबल, अगर कोई कंप्लेन, कोई वार्निंग इफ एक्सेप्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव है तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है। अगर वो नॉन एक्सेप्टेबल एंड डिस्ट्रक्टिव है तो वो रिलेशनशिप डैमेज कर सकता है। बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर और इशूइंग एनी वार्निंग लेटर। अगर बात करने में, लिखने में अगर आप ये 4 चीज़ करते हैं, इट में डैमेज योर रिलेशनशिप, बी वेरी केयरफुल। अदरवाइज क्लासरूम में क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है इन्फॉर्म करना या अप्राइज करना, परसुएड करना, रिक्वेस्ट करना, ट्रेनिंग देना, इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेट करना, एडवाइस करना, सजेस्ट करना, एजुकेट करना, क्लैरिफाई करना, रिलेट करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को रेक्टिफाई करना और इवैल्यूएट करना। ये सारे चीज़ कोई भी कम्युनिकेशन हो, खाली क्लासरूम नहीं, कोई भी कम्युनिकेशन, सिंस वी आर प्रिपेयरिंग for the examination, so I have categorically mentioned the classroom communication over here. Effective communication क्या है, उसका भी ऑब्जेक्टिव है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, हमको देखना चाहिए और फिडेलिटी है उसमें। फिडेलिटी क्या है? दैट मीन्स डिस्टर्शन फ्री मैसेज। मिसअंडरस्टैंडिंग का पॉसिबिलिटी वेरी लेस हो, दैट मीन्स नील। फिडेलिटी मीन्स क्या है? सत्य के प्रति निष्ठा, फिडेलिटी, वफादारी। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स मिनिमम टाइम, मिनिमम एनर्जी। आपको लिखना है वर्ड्स यूज करके, मिनिमम वर्ड्स लिखना है, मिनिमम टाइम पे लिखना है, मिनिमम एनर्जी एक्सपोज करके लिखना है। मतलब मितव्ययता, इकोनॉमी होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में।
कंग्रुएंस, आप जो लिखते हैं उसका अनुरूपता होना चाहिए, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। क्या है वर्बल नॉन वर्बल, हम बाद में देखते हैं। वर्बल अगर लैंग्वेज है तो नॉन वर्बल पैरा लैंग्वेज है, पैरा लिंग्विस्टिक्स एंड पैरा लिंग्विस्टिक्स, मतलब भाषा के साथ भाव भी होना चाहिए, भाषा के साथ भाव भी होना चाहिए, दैट इज द कंग्रुएंस। इन्फ्लुएंस, अगर आप ऐसा लिखते हो या बोलते हो या कम्युनिकेट करते हो, वो प्रभावी होना चाहिए, इट शुड इन्फ्लुएंस। हम बोल चुके हैं प्रभावी क्या है, दैट मीन्स अचीविंग द रिजल्ट इंटेंडेड, आपको जो चाहिए। अगर आप 10 रुपये मांगते हो तो 10 रुपये जैसा मिलेगा ऐसे ही आप बात करिए, बोलिए, लिखिए, प्रभावी होना चाहिए, अचीविंग द रिजल्ट इंटेंडेड। एंड फाइनली रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिल्डिंग ए ट्रस्ट, संबंध बनाना है। ये अगर सारे चीज़ आपके पास कम्युनिकेशन में ध्यान में रखेंगे, सो इट विल बी कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो दिस पेज विल टेल यू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है। 7C हमने बोल दिया, और एक चीज आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंडर, वो है 4S। 4S, 4 ठो एस है। ठीक है, ये क्या करते हैं, add, they add to the value of message, to the value of message, value of message। एक है शॉर्टनेस, एक है सिंप्लिसिटी, एक है स्ट्रेंथ, एक है सिंसियरिटी। शॉर्टनेस का मतलब कोई भी मैसेज हो वो ब्रीफ होना चाहिए, बिकॉज ब्रीविटी इज द विट, ब्रीविटी इज द विट। छोटा हो, अच्छा हो, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। नो वर्बोसिटी, नो वर्बोसिटी, नो वर्बोसिटी, दैट मीन्स नो हाई साउंडिंग वर्ड्स ऑल्सो। इतना बड़ा बड़ा वर्ड मत बोलो कि किसी का समझ में ना आओ। दूसरा चीज है सिंप्लिसिटी, सादगी, सरलता। डोंट लीव द रिसीवर इन ए मैच। जिसको मैसेज मिलेगा अगर वो भूल भुलैया में आ गया तो आपका मैसेज का कोई मतलब ही नहीं। और तीसरा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब उसका ताकत होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन में बल होना चाहिए। रियल एंड वैलिड, हियर इट इज रियल एंड वैलिड, रियल वैलिड, वैलिड होना चाहिए। दैट मीन्स नो हाफ हार्टेड स्टेटमेंट्स। अधीर करने वाला स्टेटमेंट्स मत देना है, अधीर करने वाला सेंटेंस मत देना कोई भी कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस के लिए। और फाइनली सच्चाई, नो डिसिट, छल नहीं होना चाहिए उसमें, उसमें छल नहीं होना चाहिए। अ जेन्युइन मैसेज, सो इट शुड बी शॉर्ट, शॉर्ट, सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर। ये सारे गुण अगर आपका मैसेज में मिलेगा, इट विल बी द बेस्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। डियर लर्नर्स, today's session is becoming a bit longer, it seems. So we will discuss in detail the other aspects of communication in our next class. So till then, keep watching and do comment, share and subscribe and press the bell icon to get the notifications first. So thank you very much giving me a patient ear.